Good morning, Macho. Welcome to online classes for mathematics. You can see that today we have to start new topic, that is simple equations. In our earlier classes we have studied algebra. In algebra we also studied algebraic expression. You can see that algebraic expressions. You can see that this statement is made up of two words, algebraic and expression. Algebra meaning a branch of mathematics in which we deal with unknown quantities, that is known as algebra. Or expression, which expresses something, which says something, that is known as expression. Here you can see, I am just reminding what you studied. Here you can see the sum of 3 times x and 11. This is a statement. The expression by which we express this x statement is known as algebraic expression. Why we are calling that algebraic expression? Because x here you can see is unknown quantity. When you deal with unknown quantity, then you will have to take the help of algebra. ओके बच्चों, तो अलजेब्रा की हमें हेल्प लेनी पड़ती है. तो जब भी अननोन क्वांटिटीज आती हैं तो वहाँ पर वेरिएबल आ जाएगा और एक स्टेटमेंट को हमें एक्सप्रेस करना पड़ सकता है. जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. कई बार हम कह देते हैं द एज ऑफ फादर इज 2 more than 3 times the age of son. जैसे लिख सकता हूँ एग्जाम्पल के रूप में, द एज ऑफ father is 2 more than 3 times the age of son. You can see this statement here. What do you think? Is age of father given? No. Is age of son given? No. Neither we are given age of father nor the age of son. ना तो हमें फादर की एज पता है, ना ही हमें सन की एज पता है, but we are given a relationship between the ages of father and son. So this expression has unknown quantities. The age of father is unknown, age of son is unknown. It means we are dealing with unknown quantities. So we developed a new branch of mathematics that is known as algebra, in which we deal such things where unknown quantities are concerned. ठीक है. तो अब हम यहाँ पे क्या करें कि अगर मान लें हम एज ऑफ सन जो है x मान लेते हैं, तो फादर की एज अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या आ जाती है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एज ऑफ फादर 2 more than, 2 more को हम बोलते हैं मैथ्स में प्लस 3 times, 3 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ एज ऑफ सन, और वो हमने मान लिए x. यानी कि जो हमारा स्टेटमेंट बन गया है वो 3x plus 2. नाउ यू सी दैट दिस 3x plus 2 expresses something. What does it express? It expresses the age of father, where x is the age of son. So that's why we call this algebraic expression. इसलिए बच्चों हम इसे algebraic expression बोलते हैं. क्योंकि ये algebraic क्यों है? क्योंकि इसमें unknown quantities involved हैं, x unknown है, ठीक है, and it expresses something. इसलिए ये क्या बन गया? दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें, algebra को और expression को, तो algebraic expression, algebra का expression कुछ express करता है. Here you can also see sum of 3 times x and 11. इस स्टेटमेंट को हम जिससे भी एक्सप्रेस करेंगे, बिकॉज x इज unknown quantity, तो that expression will be 3x plus 11, and this is known as algebraic expression. ये आप लोगों ने अब तक पढ़ा है, ठीक है. टुडे वी हैव टू एक्सटेंड आवर आइडिया. हमें क्या करना है? इस algebraic expression को इक्वेशन में बदल देना है, ठीक है. इक्वेशन में वर्ड इक्वेशन आया है, तो द साइन ऑफ इक्वलिटी विल appear there. So अगर मैं इस ही स्टेटमेंट को थोड़ा और बढ़ा दूं, लिख दूं, is
32, यानी द सम ऑफ 3 टाइम्स x and 11 is 32, so it becomes 3x plus 11 is equal to 32. तो बच्चों अब here you can see the sign of equality appears, so because of this sign this expression becomes an equation. ठीक है, इसी की वजह से ये क्या बन जाता है, एक इक्वेशन बन जाता है. ठीक है, इसलिए हम इसे इक्वेशन बोलते हैं. अब जब ये इक्वेशन है, algebraic expression has no solution, or in other words you can say it has infinitely many solutions, no unique solution. But when you see that it is an equation in one variable, so it has a particular a unique solution. इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा, क्योंकि x की कोई वैल्यू ऐसी हो सकती है जिसका 3 टाइम्स करके हम उसमें 11 करें तो 32 आ जाता है. कौन सी ऐसी वैल्यू हो सकती है? ऐसी वैल्यू हो सकती है x को अगर हम क्या रख दें, 7 रख दें, तो 3 इंटू 7 प्लस 11 इज इक्वल टू 32 आ जाएगा. 21 प्लस 11 इज इक्वल टू 32, यानी कि 32 इज इक्वल टू 32. तो x इज इक्वल टू 7 अगर हम रखते हैं तो हमारा जो है क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा. यही वैल्यू क्या कहलाती है, सॉल्यूशन कहलाती है. यही वैल्यू बच्चों क्या कहलाती है, सॉल्यूशन कहलाती है किसी भी इक्वेशन का. अगर आप इसमें x इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो क्या होगा, तो 3 इंटू 1 प्लस 11 जो कि कितना आ जाएगा, 3 प्लस 11 दैट इज 14. ये तो हमारी LHS थी लेफ्ट हैंड साइड, और ये है RHS. RHS में 32 है, लेफ्ट हैंड साइड में 3x प्लस 11 है, दोनों बराबर नहीं आए हैं, ये 32 के बराबर नहीं है, तो x इज इक्वल टू 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन. तो बच्चों इस एक्सरसाइज में हमें, जो हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ये 4th चैप्टर है, उसमें हमें यही करना है. इक्वेशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी. ठीक है, सिंपल इक्वेशन है, तो हमें उसमें सॉल्यूशन भी निकालना है, और कई बार हमें चेक करने के लिए भी देगा कि क्या ये वैल्यू x की, वेरिएबल की वैल्यू इस इक्वेशन की सॉल्यूशन है. तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 6th क्लास में आपने सीखा है, हमें वो वैल्यू उस इक्वेशन में रख देनी है. अगर दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाती हैं तो वी से दैट यस दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम कहते हैं ये इसका सॉल्यूशन नहीं है. तो इस क्वेश्चन को मैं एक तरीके से और सॉल्व करके दिखाता हूँ. यहाँ तो मैंने हीट एंड ट्रायल मेथड यूज किया, हम अब दूसरे तरीके से करते हैं कि डायरेक्ट हम कैसे इसको सॉल्व करें इसी इक्वेशन को, तो पूरी बात हमारे समझ में आ जाएगी. इसे रब कर देता हूँ. अब जैसे इक्वेशन हमें दे देगा और कहेगा सॉल्व करो कि x की वैल्यू निकालो, तो हमें क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं, वेरिएबल सेपरेबल. वेरिएबल को सेपरेट करना. 3x प्लस 11 इज इक्वल टू 32. जब भी वेरिएबल में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा तो सबसे पहले उसे दूसरी साइड ले जाना. वेरिएबल को अकेला छोड़ देना बस यहाँ पे. तो पहले 11 ऐड हो रहा है तो हम इसे उधर ले जाएंगे. नियम ध्यान रखना है इधर से उधर ले जाने का. जो भी वो इधर कर रहा है, इधर ही ऐड हो रहा है तो उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा. इधर अगर मल्टीप्लाई हो रही है कोई क्वांटिटी और दूसरी तरफ जा रही है तो वो डिवाइड करेगी. इधर अगर वो कोई क्वांटिटी डिवाइड कर रही है तो दूसरी तरफ जाने पर मल्टीप्लाई करेगी. मतलब जो भी ऑपरेशन वो इधर कर रही है उसका अपोजिट ऑपरेशन करेगी. इन अदर वर्ड्स ये यू कैन से दैट अगर ये पॉजिटिव है इधर जाके तो उधर जाके निगेटिव हो जाएगा, इधर निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा. मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो सिंपली हम करते हैं तो हमारा बन जाएगा 21. नाउ 3x इज इक्वल टू 20. अब 3 क्या कर रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, x यहीं पे रह जाएगा, उधर जाके क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा. 21/3 और 3 7 जब बनता है तो x इज इक्वल टू मेरा 7 ही आया था. तो ऐसे हम देख सकते हैं इन क्वेश्चन को हमें करना है बच्चों. ठीक है, बस यही इसमें काम है. पहले वाली एक्सरसाइज में तो सिर्फ हमें यही पता करना है कि कोई इसका सॉल्यूशन है या नहीं है तो उसे निकालना है या चेक करना है, ये हमें करना है. एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि सेकंड क्वेश्चन का हम
ए पार्ट एक बार कर लेते हैं, आप ही की एक्सरसाइज का है, बुक की एक्सरसाइज का है। तो एक्सरसाइज हमारी है 4.1, इसे मैं रब कर दे रहा हूँ। उसके बाद आप लोग इसके क्वेश्चंस लगा सकते हैं, करके देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें ताकि ये बात समझ में आ जाए। वीडियो को एक दो बार देखेंगे समझ में आ जाता है सब कुछ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन में लिखा है, हम ए पार्ट कर रहे हैं, सेकंड का ए पार्ट, बड़ा आसान क्वेश्चन है। n+5 इज इक्वल टू 19 है और ब्रैकेट में लिखा है n इज इक्वल टू 1, चेक करो इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो मैंने बताया था LHS लेंगे, जहाँ वेरिएबल है वो वाली साइड लेंगे। n+5 क्या रखना है, n की जगह 1 रख के देखिए। 1+5 इज इक्वल टू क्या आया, 6। क्या ये इक्वल है RHS के? RHS के इक्वल बिल्कुल नहीं है क्योंकि RHS 19 है। तो हम कह सकते हैं n इज इक्वल टू 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ऐसे लिखते हैं इसको। अब इसका सॉल्यूशन है क्या, वो मैंने अभी बताया, हमें कहा नहीं गया है, लेकिन हम करके देखते हैं। n+5 इज इक्वल टू 19, 5 इधर ऐड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 19 माइनस 5, तो n इज इक्वल टू बन जाता है 14। ये इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमने दोनों काम कर लिए हैं। हमने ये भी चेक कर लिया है कि उसका सॉल्यूशन है या नहीं है, और साथ साथ सॉल्यूशन निकाल लिया है। तो बच्चों ये काम आप लोगों को करना है। मुझे उम्मीद है जो बातें मैंने की हैं आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करें, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आसान है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय।